Hello and welcome to another episode of Bitcoin Hub, Bitcoin Weekly. Yo, हमारे साथ नई गेस्ट हैं. प्लीज इंट्रोड्यूस भाविक. yeah, कौन है? yeah. She's Dhannu. Say hi, welcome. Bitcoin. Like धन्नु की तरफ से ये मैसेज है कि Bitcoin is winning. Yeah, यस. काफी अच्छा okay, इंट्रोडक्शन lovely. था. मतलब ये क्या बोलते हैं, वी शुड सेट अ सेपरेट स्टेज फॉर धनो ना. एक कैमरा हम्म. असाइन करके चार्ट के पास विल हैव टू कीप अप. हाँ, पर यार ये शांत से बैठती नहीं, वरना कर सकते इसका. या. Yeah. Bitcoin जर्नी में ये साथ रहेगी. Like, या. yeah, कब कब हाँ, huh? कब अडॉप्ट I अडॉप्ट adopted किया? her. I think Bitcoin block was around 849 500, ओके. 849 200 something. But ठीक है, ध्यान नहीं रखा था. हम्म. Just 20 days. Hmm. ओके. She's only 50 days old and she's so much curious. Yeah. या So डिस्क पे say तो हमेशा bye. she keeps moving. Yeah. Say bye to everyone and then we will let her go. तो आगे बढ़ते हैं. आज का, इस वीक का रादर, काफी concerning news रहा for a lot of people, for a lot of newcomers, that the Bitcoin price has crashed from the highs of 73,000 in March to 57,000, and Hmm. कुछ दिन पहले it had touched Yeah. 53,950. 2 days ago, right? इसके, हाँ, 53,900. फिफ्थ को. Right. Right. इसके कई सारे रीजंस हैं. वी विल गेट टू दैट इन अ बिट. बट इन द लॉन्ग होराइजन, अगर आप ईयर टू डेट देखोगे, साल के स्टार्ट से अब तक, देयर हैज बीन एन Hmm. इंक्रीज ऑफ 36.58%. एंड अगर आप Right. एक साल का कंपैरिजन करोगे, इट विल बी 90.72% इंक्रीज होगा. Hmm. सो for the viewers and for anyone who's new to this space, it is Hmm. always advisable that Bitcoiners always suggest you don't trade. You have to do a very minor Hmm. amounts of SIP after doing your enough study and research, and then dive into it. ऐसे Hmm. नहीं है कि आप and long form में देखना. ऐसे नहीं है. This is not a quick get rich quick scheme. Obviously, none of this is investment advice, but do a thorough study before you actually panic or get Hmm. very excited about the price movements. भाविक, आपका इस पे कुछ कहना है? राइट. लाइक मैं तो इसको लाइक ऐसे मानता हूँ, इट्स हेल्दी करेक्शन. और लाइक प्राइस अगर ऊपर जाए नीचे जाए मैटर नहीं करता. लाइक शायद और भी नीचे आए या और भी ऊपर जाए. बट लेकिन आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, जाए कि मोर देन 6 मंथ 1 ईयर, तो मुझे ये पता है कि 2 साल बाद 95% और बहुत ज़्यादा चांस है कि बिटकॉइन की प्राइस इससे ज़्यादा ही होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी. Yeah, बिकॉज ये फिक्स्ड सप्लाई है, जैसे हम कहते हैं. सो like after finding bitcoin we don't need to worry about investment trading. So yeah, like आप कैसे भी पैसा कमा सकते हो और उसको अपना इसमें सेफ रख सकते हो, स्टोर रख सकते हो. आपको इन्फ्लेशन से डिवेज नहीं हो पाएंगे आप. So right. it's a good healthy correction after all that. Yeah. And the Mhm. reason for this correction is mainly because of this, कि German Hmm. government बेच रहे हैं, German government बेच रही है Hmm. the extra stash of Bitcoin that they've collected from their, उनके raid से, उनके, whoever used to collect ransomware in Bitcoin, they Hmm. used to raid their places and वहाँ से collect करते थे. So all the Right. criminal offenses का जो भी extra Bitcoin बचा था, it was with the German government, and now they're offloading it. धीरे धीरे it's being felt in the market. So whenever this news is announced, market predicts this. Like, they work in the future forward direction, and they account for all of the possibilities, and then Hmm. इसलिए आपको immediately आपको drop या spike देखने को मिलता है. So it Hmm. takes into account all of these news and headlines and then moves forward. So this is one Hmm. of the reasons. And the second reason is Mt. Gox begins its repayments.
Hmm. Mount Gox was an exchange around 2013, जिसके बंद होने की वजह से a lot of exchange में जो अपना पैसा रखे थे, a lot of customers they Right. lost their money. Lost as in, yeah, थोड़ी लॉक हो गया था for a Hmm. better More word. than 10 years, right? Yeah. So they were अब उनको forced मिला है। to hold. Yeah. Hmm. अभी जाकर के उनको मिल रहा है धीरे-धीरे and Hmm. so this news also again triggered panic in the markets, saying Hmm. कि what is happening, Hmm. why is the market falling. So this is Hmm. these are the Did two main. you Hmm. right? Did you see that news? Like German government is buying buybacks Bitcoin. नहीं, 100 ये नहीं million देखा. डॉलर के buybacks किया कल फिर से. अच्छा. So I think yeah, there are some change of plans from the German government. हाँ, तो इसके आगे coming to that only. Now, Hmm. within the Right. German government itself, there are people who are aware of the potential of Bitcoin and they know what kind of an asset this is. And there have been massive developments in US front also, which we'll cover in some time. तो उसके चलते जर्मन पार्लियामेंट मेंबर ने बोला कि instead of holding Bitcoin as a strategic reserve currency, Hmm. our government is selling on a large scale. This is Hmm. not only not sensible but counterproductive. And Bitcoin strategies for nation states का एक event है, Samson Mao, who heads Jan 3. Jan 3 is an organization which helps in nation state adoption of Bitcoin. He Hmm. used to work Blockstream before, अभी पता नहीं काम करते हैं या नहीं. तो हाँ, so this is what is happening on October 17th. So she's gearing up and she's informing the German parliament कि मत करो ऐसा, it will be costly for the government itself in the future if they want to buy back from the open market. And the development that she's Right. referring to is this one कि फोर्ब्स आर्टिकल था कि ट्रम्प ने ऐसा बोला है and there have been ongoing discussions that as the large nation state holder of Bitcoin, United States already has a leg up over other countries in accumulating digital gold. But classifying and then treating Bitcoin as a strategic reserve asset would kick the nation state race for Bitcoin high gear. Bitcoin into high gear. So this were not the words of Trump, obviously, not now, not yet. But एक Sam करके बंदे हैं who has written an article for Forbes, and he has mentioned this. So there's been a lot of Right. action happening if you zoom out and look at the macro level and not Hmm. obsess over price. So these are the developments that have happened in the last 1 week. जिसके चलते Hmm. even if the price has fallen, it has fallen for other reasons, whereas the fundamentals of the coin remain intact. And ऐसा नहीं है कि anything has changed on the protocol level and there have been vulnerabilities. ऐसा कुछ नहीं. राइट ऐसे क्रैश तो लाइक होते रहते हैं लाइक जो भी यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा टाइम तक है बिटकॉइन उनको पता है लाइक 2 साल Yeah, 3 साल पहले बिटकॉइन crashed from 69,000 to 15,000 it was 78% क्रैश उससे पहले 84% का क्रैश था 2018 में सो इट इज़ नथिंग है ना ये क्रैश तो कुछ नहीं ये क्रैश को तो आराम से लोग मौज मार के घूम रहे correct, मस्त correct. हम्म And अगर आप again भाविक ने ये चार्ट निकाला है, so अगर आप देखोगे भी हम्म again like year to date performance of all major asset classes, everywhere in all the commodities, equity market, uh, bond market, real estate, हम्म ETFs को लेके, compared to all of that, Bitcoin has performed much better. So again, look at it from a long term सिल्वर horizon. सिल्वर परफॉर्म क्वाइट अ गुड राइट Yeah, सरप्राइजिंग बट लाइक लॉन्ग टर्म में नहीं करता अभी ये आई थिंक ये इस साल का है इसलिए लाइक गोल्ड एंड सिल्वर डिड अ गुड रैली दिस ईयर गोल्ड से अगर भी ज्यादा दो तीन कैसे सिल्वर परफॉर्म कर रहा है, व्हाट इज हाँ सरप्राइजिंग. वो करता है लाइक कभी कभी करता है जैसे डोज कॉइन करता है बिटकॉइन से ज़्यादा कभी कभी शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो ऐसे ही है सिल्वर का इन्फ्लेशन रेट लाइक एनीवेयर अराउंड 8 to 10% है
7 आई थिंक 6 to 7%। गोल्ड का जैसे वो 2% है ना हम्म स्टॉक टू फ्लो रेशियो, तो आई थिंक सिल्वर का, अगर मैं गलत ना हूँ तो भी सिल्वर इज एबल टू कोप अप, हम्म। कभी कभी हो जाता है। एंड इन व्हेन स्पीकिंग ऑफ डेवलपमेंट्स, एल साल्वाडोर ने हम्म एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। हम्म। यू वांट टू टेक अस थ्रू दिस, भाविक, क्या बोले हैं? तो मतलब एल सल्वाडोर ने, ये मानो कि जो भी नए लोग हैं उनको पता नहीं कि उसको थोड़ा कंटेक्स्ट, कि एल सल्वाडोर ने 2021 में 2021 में बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया था, ये समझ लो कि बोला था। तो मतलब वहाँ पे डॉलर भी करेंसी चलेगी और बिटकॉइन भी चलेगी, लीगल टेंडर जो बात होता है। तो उसके बाद से मतलब वर्ल्ड की जो फर्स्ट कंट्री थी जिसने लीगल टेंडर किया था, तो उसके बाद से काफ़ी चर्चा में थे। तो फिर वोल्केनो माइनिंग बॉन्ड भी उन्होंने इशू किए थे। दे माइंड अराउंड हाउ मच बिटकॉइन, 470 बिटकॉइन अराउंड, या मतलब इन द लास्ट 2 years। सो वो दो डेवलपमेंट थे। अब नेक्स्ट डेवलपमेंट है वो बिटकॉइन बेस्ड बैंक्स अनाउंस किया है। तो अगर सो बिटकॉइन बेस्ड बैंक वही बैंक है जिसमें जिसमें हेल्फिने ने मतलब 2010 में बताया था कि बिटकॉइन स्पेसिफिकली जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस करने के लिए ज़्यादा सूटेड है। सो जैसे हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वो इट विल बी फुल्ली बैक्ड, लाइक फुल्ली डिपॉजिट फुल्ली बैक्ड टाइप होगा। सो या इस टाइप से रहेगा। सो लाइक इट्स अ गुड डेवलपमेंट। बैंक्स में होता है किस तरह होता है पता चलेगा, ये तो जस्ट पहली न्यूज़ है। हम्म। माई कैमरा इज ऑफ फॉर 2 minutes। ठीक है। राइट राइट, मैं करता हूँ या अभी। बट वी यू कैन कैन, कंटिन्यू, वी कैन कंटिन्यू, यस वी कैन, या ठीक है। सो हम्म दैट कम्स एंड दिस इज अगेन वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे नहीं है कि अभी बन चुका है, दे हैव जस्ट मेड एन अनाउंसमेंट एंड हम्म यू नो, I think it won't be for retailers as of now. It'll be हम्म for the हम्म investment banks and jinka capital is above certain threshold. Uh, Proposed banks can operate in any legal tender, including US dollar and Bitcoin. So this will happen in a few weeks or राइट। months. We can see this happen. And जब भी आपकी नई bull rally मिलेगी, you can see this coming into हम fruition. लाइक वी कैन डिस्कस अबाउट बिटकॉइन बैंक्स कि लाइक हाउ Yeah, डज इट वर्क थोड़ा बहुत, लाइक yeah. जैसे मैं कहूँ कि अभी इंडिया के केस में बात करते हैं। सो इंडिया का जो पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है। सो Hmm. इंडिया में फ्रैक्शनल रिजर्व में रेशियो है 4.5%, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। बहुत बार बातें करी हम इसके बारे में, CRR। सो वही है कि अगर लाख रुपए तुम जमा करते हो तो 4,500 रुपये बैंक डिपॉजिट रखती है कैश में, बाकी का रिमेनिंग वो लोन आउट कर दे, बाकी का रिमेनिंग लोन आउट कर देता है। माई वॉइस इज ओके राइट? हाँ, perfect. Please carry नॉइज on. नॉइज नहीं आ रहा ना, बिकॉज देर आर सम नहीं, कंस्ट्रक्शन गोइंग अराउंड। नहीं, ओके यहाँ पे तो नहीं आ रहा, यहाँ ओके पे भी बहुत सारा शोर हो रहा था। ओके ओके ओके, राइट। सो या 4.5% रिजर्व रेशियो है अपना। तो मतलब अगर हम लाख रुपए जमा करते हैं, 4,500 वो बैंक जमा करती है, और आगे का 95,500 वो लोन आउट कर देते हैं दूसरों को। लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात है कि जिसने 1 लाख रुपए जमा किया है उसको भी वो लाख रुपए उठाने कभी भी देगा, और आगे भी जिसको लोन दिया है वो भी उठा पाएगा। फिर आगे फिर वो अब 95,000 आगे जाएगा, आप लोन लेने गए आपको मिला, अब आप फिर आपने बैंक में डिपॉजिट किया, उसके 4.5% निकाल के बाकी का फिर लोन आउट दिया जाएगा। तो ये चक्कर Yeah. चलता ही रहेगा। तो उससे ये होगा कि मनी क्रिएशन हो रहा है। 1 लाख है, 1 लाख से तकरीबन 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बन जाता है। और केंजियन इकोनॉमिक्स में ये कहना है कि जिस तरह मनी स्टेट जितना डेट बेस्ड सिस्टम जितना होगा, जितना स्टेट मनी क्रिएट करेगी, Hmm. उतना इकोनॉमी सही चलेगी। पर इससे नुकसान ये होता है कि हमने मनी सप्लाई बढ़ा दी। जब मनी सप्लाई, कोई भी मनी सप्लाई बढ़ाने से कोई इकोनॉमी में फ़ायदा नहीं होता, राइट? मनी सप्लाई अगर बढ़ने से फ़ायदा होता तो मनी छापने से अगर इकोनॉमी सुधर सकती है तो भाई डिप्लोमा छाप दो, डिग्री छाप दो, है ना? लोग एजुकेटेड बन जाएँगे। Yeah. और कोई भी चीज़ छापने से उसकी कीमत ही घटती है। तो फ्रैक्शनल रिज़र्व के बहुत ज़्यादा नुकसान है, और ज़्यादा नुकसान में जाना हो तो आप काफ़ी बुक्स है, फिएट रूइन्स एवरीथिंग, स्टेफन Yeah. डिनेमोस की बुक है फिएट स्टैंडर्ड। ऑस्टिन इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी मुरे रोथबार्ड, लुडविग और मिसेस ने भी काफ़ी अच्छा-अच्छा लिख रखा है, वो सब देख सकते हैं। तो बहुत सारे नुकसान है, और वही, और जो आज हम पिछले 100 साल में और अभी खास करके लास्ट 30-40 साल में जो हम सोसाइटी का कोलैप्स देख रहे हैं, वो मोस्टली लाइक फॉर मी आई एम मुझे लग रहा है कि सारा ये इसी के फिएट मनी के कारण ही सारा हमें देखने को मिल रहा है। मनी जितनी
डिवैल्यू हो रही और सारी वेल्थ चोरी जा रही है, एक ट्रांसफर हो रही है गरीब से, लाइक अनएजुकेटेड से एजुकेटेड की तरफ ट्रांसफर हो रही है, और वो भी अनएथिकल वे से। सो बिटकॉइन बैंक उसको सोल्व करेगा। तो लाइक एल सैल्वाडोर तो उसमें फुल्ली बैक्ड रहेगा, और जितना भी अगर रिजर्व फ्रैक्शन करेंगे भी, तो दे विल लेट यू नो कि भाई आपका बिटकॉइन आपने डाला है, तो आधा बिटकॉइन हम आपको आपको मिलेगा, बाकी हम आधा विड्रॉ लोन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको भी पूरा बिटकॉइन उठाने दे रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपका बिटकॉइन एक अकाउंट में पड़ा है, तो वो उधर उधर है, लाइक वो किसी और के पास नहीं, वो आपके उसी एड्रेस में है। जबकि बैंक्स में ऐसा नहीं होता, राइट? बैंक में अगर या आपके भी खाते में दिखा रहा है, वो जब नंबर ही है, और उनका सेंट्रलाइज अथॉरिटेटिव सर्वर है, वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, वो तुम उसमें उसको रोक भी नहीं सकते। सो इस बिटकॉइन बैंक्स में तो काफी अच्छी बातें किया जा सकती है। बट शॉर्ट में कहो तो बिटकॉइन बैंक्स आर वेरी गुड, और लोगों की लोगों को अपना कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसकी जो सेविंग्स है वही उसका इन्वेस्टमेंट है, वही उसको इकोनॉमी जब इंक्रीज होगी तो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। सो या काफी जो मिस बिहेवियर्स क्या क्या कह सकते हैं, जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है सोसाइटी की, वो खत्म हो जाएगी, तो अपने आप तुम्हें मतलब प्रॉब्लम्स ही क्रिएट नहीं होंगे, तो फिर तुम्हें सोल्यूशन नहीं ढूंढने पड़ेंगे। अभी ऐसा है कि फियाट सिस्टम ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, फिर अलग दूसरी तरीके से हल करके मलहम पट्टी लगा रही है, सोल्यूशन कर रही है ना? तो वो सब नहीं होगा, और आगे में देखने को मिलेगा कि अब एल साल्वाडोर कैसे प्रोग्रेस करता है। और आगे न्यूज आती रहेगी, लाइक कंटिन्यूअस न्यूज चालू ही है। या एट द एंड ऑफ दिस डेकेड, आफ्टर 6 years, आई थिंक एटलीस्ट 5 कंट्रीज, उसमें से कोई एक आध बिग कंट्रीज भी बिटकॉइन स्टैंडर्ड पे होगी, बैंक्स ऑपरेट कर रही होगी, काफी चीजें हो जाएगी। माय ओनली कंसर्न इज ऐसा, आई हम्म थिंक, आई डोंट नो, हम्म मैंने इसके बारे में पढ़ा था, बट सोर्सेज का आई एम नॉट एंटायरली श्योर ऑफ, बट हम्म देयर हैज बीन केस इन द पास्ट जहाँ पे ऐसा अटेम्प्ट हुआ था वेयर आई एम ओके, आई कट टू हम्म चीज। गद्दाफी ने ऐसा अटेम्प्ट किया था लिबिया में, राइट 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 where राइट he गद्दाफी wanted ने to किया था। unite the entire African region to compete with the Federal Reserve. राइट। पूरी बैंक्स ऑफ अफ्रीका को यूनाइट करके इट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन फेड, हम्म एंड अगर वो होता देन इट वुड हैव बीन अ ग्रेट अचीवमेंट, because as of now, हम्म like resource wise, human हम्म capital wise, they are very strong, but they are very हम्म scattered, छोटे छोटे जो पॉकेट्स, अफ्रीका की बात राइट। कर रहा हूँ। तो हम्म वो हुआ नहीं, एंड दैट हम्म इज, वो होने नहीं दिया रादर, बिकॉज राइट। ही हैड ऐसे ही, लाइक ही वांटेड इंटरेस्ट फ्री लोन्स, एंड ही वांटेड वेल फॉर द सोसाइटी ओवरऑल। अगर आप हम्म देखोगे बहुत सारे वापस आर्टिकल्स हम्म उनका जो रीपे नहीं कर पाते थे, तो यू नो ही वुड हैव बीन लिटिल लीनिएंट एंड रिलैक्स्ड वहां पे, हम्म not bailing out corporations and other banks, वो नहीं बात कर रहा हूँ मैं, I'm talking about retail and small. So this was attempted in the past, and he was on दैट इज the डिफरेंट, राइट? दिस इज was डिफरेंट, राइट? दिस इज correct. बिटकॉइन, है ना? लाइक Yeah, but here also you're इजी टू talking about इम्प्लीमेंट, self नो? sovereignty. बट इजी टू इम्प्लीमेंट, लाइक वो जो करने के लिए तुम्हें पावर, थोड़ा सा Yes, वो पावर की मोनोपोली वही अथॉरिटी difference. चाहिए थी, ट्रस्ट चाहिए Correct. था। नाउ वी डोंट नीड ट्रस्ट, और वी नॉट नीड परमिशन, राइट? और इट इज Yeah, that's हार्ड the टू only बैन। difference. Yeah, हाँ। that I agree. इसलिए this is why, I हम्म mean, there is an opportunity this time, and El Salvador हम्म being a Latin American country, there हम्म are better, there are better chances for हम्म uh, see the light of the day with Bitcoin राइट। as a reserve asset. हम्म So हम्म yeah, what you're saying is true, but we'll have to see कि step by हम्म step progress कैसे होता है, because El राइट। Salvador as a country also has come under the scrutiny of IMF for a long time now. हम्म And पहले तो बोल रहे थे कि they were against this, कि कैसे होगा, macro economic stability नहीं होगी, but then हम्म El Salvador proved its mettle and बताया कि we have done so much improvement after adopting the Bitcoin standard. हम्म Uh, तब जाकर के their IMF stance on it has softened over the course of हम्म few months. तो या खैर, we'll move on to the next topic. ये तो ये covered. What is this about X Coinbase user
डेटा पोटेंशियली सो कोइनबेस के डाटा और ट्विटर के डाटा एक्सपोज हुए हैं, केवाईसी, और अच्छा। केवाईसी प्रोवाइडर इजराइल की है ये सर्विस कोई। सो उनके एम्प्लॉय से साइड से वल्नरेबिलिटी फाउंड हुई है। लाइक टेक्निकल में ओके। ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट कहने का मतलब यही है कि अगर तुम्हारे एसेट एक्सचेंज में पड़ी है तो ध्यान रखना कि मतलब विड्रॉ कोई भी ले जा सकता है। या और ये ऐसा आगे में और दिखता ही रहेगा। लाइक आज कोइन बेस का हुआ है, कल कोई बैंक्स का होगा, कोई एक्सचेंज का होगा, ये सब सेंट्रलाइज। तो लाइक फॉर दिस इसका सॉल्यूशन अपने पास नोस्टर है। अगर नोस्टर पे आता है तो सबके पास अपने अपनी ये, मतलब इन सब में प्रॉब्लम यही है ना कि जितने भी हजारों लाखों जितने यूजर्स होंगे, उनके जो डाटाज होंगे, उनकी जो कीज होगी, वो कोई सेंट्रलाइज सर्वर में है। लाइक लाइक राइट, कोइन बेस कोई भी एक्सेस कर सकता है तुम्हारा सर्वर। कोइन बेस तुम जैसे इफ यू आर यूजिंग लेट्स से जीरोधा इंडिया, तो जीरोधा के अगर जीरोधा ने चाहा तो वो हमारे स्टॉक खरीद सकता है, बेच सकता है, राइट। टेक्निकली दे हैव द अथॉरिटी, और या सेबी इज नॉट अलाउइंग देम, द लीगल स्ट्रक्चर इज देयर, बट टेक्निकली दे हैव द कैपेसिटी। और अगर वो नहीं करेगा तो हैकर कर सकता है, राइट। ट्रू। तो द डिफरेंस बिटवीन ये इंफ्रास्ट्रक्चर और नोस्ट्रम इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस है कि अगर नोस्ट्रम में ये हुआ तो कीज कोई एक जगह पे सेंट्रलाइज के पास नहीं रहेगी। अगर कोई नोस्टर बेस्ड कोई एक्सचेंज होगा, उसमें अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो आपकी एसेट आपके पास ही है, उधर ही है। जैसे एलन मार्केट्स में, लेकिन एलन मार्केट डिफरेंट नहीं कह सकते, बट हमें वो इससे भी एलन स्ट्रॉन्ग मार्केट को आप जीरोडा से कंपेयर कर सकते हो इसे। कर सकते हैं, राइट। एलन मार्केट अभी तो वो लाइटनिंग पे बेस्ड है, लाइक बस इट्स नथिंग, इट्स फुली कस्टोडियल, राइट। इट्स अ फुली या कस्टोडियल, बट इट्स सो प्राइवेट कह सकते हो। लाइक यू कैन कंसिडर प्राइवेट, एंड आई थिंक दे विल प्रोवाइड अपना नोड प्रोवाइड करने की कुछ, लाइक वी कैन कनेक्ट अवर नोड समथिंग, ऐसा कुछ तो आएगा। हम नॉन कस्टर्ड वे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ आएगा। विल सी समथिंग लाइक दैट। या डीएलसी जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, डीएलसी राइट, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रिक्ट लो कॉन्ट्रैक्ट, राइट। हाँ हाँ हाँ, डीएलसी उस वो उस पे हो सकता उस पे है और ना। पढ़ना पड़ेगा बिकॉज वहां पे और एक राइट। एक मैं आगे की जाके कवर करूंगा तब वी कैन डिस्कस मोर अबाउट। राइट। देयर बीन लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स ऑन दैट फ्रंट आल्सो। राइट। और स्पीकिंग ऑफ Coinbase, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने सू किया था Coinbase को फॉर बीइंग एन अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड अ क्लियरिंग एजेंसी। एंड दे आर यूजिंग वहाँ के जो ETFs हैं, यूएस की जो ETFs हैं, दे आर यूजिंग Coinbase एज अ कस्टडी एंड ट्रेडिंग पार्टनर with a fee of 32.5 million. So बताओ। they're very confused on what needs to be done. And speaking of hacks, अभी recently कल या परसों I'm not sure आपने देखा होगा, एयरटेल की भी उड़ती खबर आई थी कि राइट। हाँ हाँ। but Airtel obviously denied it. But वो again, why to take chances is the thing. So if you can take control and take charge of your own data and uh, whatever you're putting out on the internet, and the way to do that is through Nostr. It'll be good बट for लाइक नोस्टर इज नॉट रेडी येट, बट होगा, लाइक धीरे धीरे होगा। लाइक काफी में जो भी है डाटा हम खुद ओन करेंगे। लाइक yes. हमें इतना कोई मेजोरिटी डाटा और ट्रेडिंग के डाटाज भी कह सकते हो, अपने सोशल मीडिया के डाटाज, फिर फोन नंबर है वो भी लाइक इंटरनेट बेस्ड वो भी आ सकता है फोन नंबर। सो Yeah. वी नो वी वोंट नीड केवाईसी। अभी आ भी रहा है, लाइक पता है अभी कुछ, लाइक यू कैन गेट सूडो सिम्स करके कुछ है, सूडो सिम अच्छा. और समथिंग। आप यू कैन गेट इनफिनिट numbers, सिम कार्ड नंबर्स फॉर very cheap rate, Okay. and they also accept bitcoin and lightning. So you can but net chalega, you will not get calls, but you can use internet. So you can But talk data over a calls signal. होती है. Yeah, हाँ. right, signals or whatsapp, no, signal is preferred. Yeah, talking about signal, we can cover signal also. Yeah, Signal signal का में एक मिनट, let me find that if you article. have that, yeah. वो तो सिग्नल का ये है कि uh, रूमर आई ये तो है कुछ। हाँ रूमर है, हम्म वल्नरेबिलिटी है, बट इट इज अगेन वो प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है. एंड इसमें messages are kept safe in an encrypted file, but it's on your system itself. Media attachments are stored locally without encryption. तो ऐसा सब पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, बट एट द सेम टाइम सिग्नल इटसेल्फ इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. बट अगर आपका फाइल सिस्टम कोई एक्सेस कर सकता है, देन यू हैव बिगर प्रॉब्लम्स देन जस्ट
signal राइट। to worry about. So yeah, सिग्नल के मामले में ये है फिलहाल तो। हुँ। सो कमिंग टू मतलब द हाँ, उसमें हाँ, राइट, उसमें मतलब मेन कहने का उनका मतलब है कि सिग्नल की जो फाइल्स है वो या अनइनक्रिप्टेड स्टोर हो रही है तुम्हारे फाइल सिस्टम में, या और उसको ये लोग वल्नरेबिलिटी बोल रहे हैं कि ये भाई प्रॉब्लम फाइल है। सिस्टम डेस्कटॉप राइट, बोल रहे हो, डेस्कटॉप आई मीन। है ना, डेस्कटॉप, हाँ, हाँ डेस्कटॉप की बात हाँ है ना, मोबाइल यूजर्स में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं या है ना। नहीं। या सो डेस्कटॉप में अनइनक्रिप्टेड फाइल स्टोर हो रही है और इसको ये लोग वल्नरेबिलिटीज बोल रहे हैं। हम्म, बट वो ओपन करे या फिर खुलेआम की स्टोर है फोन में, ओएस में, लाइक फाइल फोल्डर में, तो वो आई थिंक वो कोई रिस्क नहीं है, सही बात है। अब फाइल या फोल्डर ही एक्सेस हो जाता है कहीं बाहर से, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ सिग्नल। तो ये ऐसे रूमर्स आई कैसे यार, समझ नहीं आया मतलब। और कुछ भी लोग सिग्नल को बर्बाद, नाम खराब कर रहे हैं और अच्छे अच्छे अकाउंट ट्वीट कर रहे हैं इसको, थोड़ा हम्म, समझे भी नहीं। इट्स लाइक सिग्नल की प्रॉब्लम थोड़ी हुई है। नहीं नॉट येट। है वही ना? ना, मतलब अलार्म हम्म बेल्स तो रेज करते हैं। हम्म लाइक हम्म अगर हम्म आई एम नॉट श्योर वो एयरटेल का रूमर कितना ट्रू है, बट हम्म। एयरटेल ने तो डिनाई किया है यार, ऑब्वियसली उन्होंने अपना चेक किया होगा, थरोली चेक। सो राइट। दैट इज अगेन फॉर टार्निशिंग एयरटेल्स इमेज, अगर आप ऐसा देखोगे तो। या बट अनइनफॉर्मली मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया में लाइक यू कैन गेट द डाटा ऑफ ऑल इंडियंस, लाइक आधार या कार्ड, वोटर आईडी, इन ऑन टेलीग्राम, like I don't know the link, but if you just go on Telegram and find someone, you will find people कि जो तुम्हें कुछ हजारों रुपए में पूरे इंडियंस का 150 करोड़ लोगों का सारा डाटा, नाम, एड्रेस, वोटर आईडी, आधार कार्ड सब मिल जाएगा। इतना खुलेआम डाटा पड़ा है। सो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ केवाईसी। लाइक केवाईसी करके बैंक्स ने ये सब तो ट्रस्ट बनाने की ट्राई तो करी, बट साथ साथ इन्होंने दूसरा हनी पॉट क्रिएट कर दिया और बड़ा रिस्क खड़ा कर दिया। नहीं, यहाँ पे इंडिया में स्पेशली ओवर केवाईसी चलता है। दैट्स व्हाट आई बहुत फील। ज्यादा। हर चीज में यार, तुम अगर पानी लेने जाओ एट अ रेस्टोरेंट, वो लाइक सर कैन बी हैव योर फोन नंबर एंड योर नेम। हाँ यार, हर कोई अब साले फोन नंबर मांग रहे हैं और लोग दे रहे हैं। या पढ़े लिखे लोग दे रहे हैं। या दे रहे उन्हें बावड़ों की तरह दे रहे हैं यार लोग, मतलब प्रॉब्लम नहीं मना, लगता। मैं स्किप स्किप करो यार, तो बोला सर प्लीज वी विल गेट सम बोनस, में बोला बंद करो, आई वोंट प्रोवाइड माय नंबर यार। हर चीज में फोन नंबर, हर जगह फोन नंबर से साइन इन, अरे एक कुछ भी ऑनलाइन मंगाओ तो साला क्या क्या भरवा देते हैं वो, या ट्रू। परेशान कर ऑनलाइन तो रखे हैं अलग यार ही ये। बात है, बट मैं नॉर्मल हाँ, रिटेल स्टोर ऑफ, की बात कर रहा हूँ। राइट तुम्हें राइट पानी राइट। बेचना है, चाय बेचना है, उसके लिए तुम्हें नंबर राइट। क्यों चाहिए? आई हाँ अंडरस्टैंड वो कस्टमर एक्सपीरियंस पार्ट एंड ऑल ऑफ दैट जैज़ हाँ अलग है। ठीक है, हाँ। इफ यू आर बिकमिंग दैट बिग। मैंने चायोस की बात कर रहा हूँ, चायोस एज एन एग्जांपल। मैं हुँ। लास्ट गया था, हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। एवरीथिंग इज ऑन देयर टच पैड। ऑर्डर हुँ, भी आप उसमें करो, नंबर नंबर नहीं डालोगे तो यू कैन नॉट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ऐसे कैसे? ओके, जबरदस्त। सो ओके। इससे वहाँ बेटर है पे कोई कि बंदा नहीं था, लाइक कोई क्या बोलते हैं उसको, नहीं, थे थे शायद। थे, हाँ, बट वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप टच पैड पे ही करो। ओके। सो आपका क्या काम उधर? डाटा ले लिया और फिर बाद में चलो डाटा सिक्योर रहता नहीं ना, दिक्कत वहाँ है यार। दैट इज द प्रॉब्लम। डाटा मुझे सिक्योर रहता डेटा नहीं है। कलेक्शन ठीक है, चलो हुँ, आफ्टर अ पॉइंट यू नीड फॉर अ बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस एंड हुँ, पर्सनलाइजेशन, वो हुँ, हुँ। ज़ैपोज़ का मॉडल फॉर्म फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बट उसके चलते यू आर कलेक्टिंग स्टफ व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। कहीं और चले इसीलिए जाते हैं डाटा वो, कहीं और, हाँ, मतलब कहीं और से हाँ, कॉल्स आते हैं, उनको वो डाटा बिकता है। या मैं दूसरा वही भी मेरे साथ क्या हुआ, राइट, राइट, बताओ, बताओ। डोमिनोज का भी लीक हुआ है, हाँ, लाइक ऑफ ओके। अभी रिसेंटली नहीं, पहले। हाँ, तो हाँ, उसमें मैंने अपना एड्रेस पूरा देखा था ऑनलाइन हाँ। एंड आई वाज ओह! शॉक्ड ओह! कि कोई भी एक्सेस कर सकता है एंड खुलेआम एवरीवन सारा। नोज कि आई मीन इट्स नॉट लाइक आई हुँ। एम अ वेरी यू नो इन्फ्लुएंशियल पर्सन और ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, हुँ। बट हाँ, एट द मतलब हमें सेम रिस्क नहीं टाइम है, अगर बट हम कॉमनर्स को रिस्क, ऐसा हो सकता है, देन राइट। एनीवन कैन बी टारगेटेड। हुँ, हुँ, हुँ। अभी 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 एक दूसरा क्या हुआ कि लाइक आई वाज़ टॉकिंग ऑन अ फ़ोन कॉल, हुँ, नॉर्मल कॉल पे बात कर रहा था। हुँ, सो आई मेंशन वन स्टॉक टू माय हुँ, फ्रेंड, हुँ, स्टॉक ऑप्शन जो इंडिया की कोई पब्लिक कंपनी थी, हुँ, उसका स्टॉक कोई भागा था 20%, तो मैंने उसका नाम लिया। हुँ, बातें की, उसका चार्ट नहीं देखा, चार्ट नहीं देखा, हुँ, जस्ट बातें करी। हुँ, देन आई ओपन ज़ीरोधा, उसका चार्ट देखा बाद में। हुँ, देन आई आधे घंटे बाद शाम तक मैंने यूट्यूब खोला ना, तो यूट्यूब हुँ, में उस कंपनी की ऐड आ रही थी। या
आपने सर्च किया था कि गूगल पे और समथिंग? नहीं। नहीं, मैंने ज़ीरोधा में सर्च किया था और फ़ोन पे बात की थी, 2 चीज़। अच्छा। मैंने गूगल नहीं किया था। तो ये हो रहा है, अब ये इसका क्या समझे मतलब, पर कॉल्स भी सुन रहे हैं और कॉल सुन ही रहे होंगे लाइक, या आई एम श्योर क्योंकि दे हैव वो कैपे एंड 20 साल पहले बोल रहे थे कि वो दे हैव कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन रिकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली, 20 साल किसकी? पहले इज़राइल के पास। अच्छा। वर्ल्ड वाइड लाइक एक साथ वो 1 मिलियन कॉल में लाइव रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं विद कंप्यूटर्स। 20 साल पहले की बात है। तो आज 1 मिलियन है तो 1 बिलियन तो होगा ही 20 साल में 1000 टाइम्स। सो Yeah. सब कुछ भी किसी को भी सुन सकते हैं लाइव सारा। सो लाइक वी शुड गो फॉर सिग्नल। कॉल्स के लिए हम्म, सिग्नल पे बात करनी चाहिए, मैसेज के लिए भी सिग्नल पे बात करनी चाहिए। लाइक आई एम ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स सिग्नल नाउअडेज़। व्हाट्सएप बिल्कुल सेफ नहीं है। एआई आ गया पूरा डाटा, अब तो मतलब व्हाट्सएप से डाटा व्हाट्सएप हटाने के में बिल्कुल अंदर दिक्कत है। एआई डालने की क्या जरूरत थी? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। वो तो वहां पे हाँ, कौन वही यूज करता है? वहां पे भी लोग कर रहे हैं ना, अपने बिटकॉइनर भी कर रहे हैं। या बिटकॉइन के बारे में पूछ रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, लोग सब कर रहे हैं। मैंने तो वो सब्सक्राइब किया ही नहीं है अब तक, एंड आई डोंट थिंक करूंगा। जरूरत है नहीं, अगर यूज मेरे को करना तो सबसे मैं चौबीस। सीधा आ रहा है लाइक वी डोंट हैव टू, आई थिंक मैं तो सीधा ऊपर गोल्ड बटन आ गया, उसमें क्लिक किया तो बोला हाय आई एम मेटा है एआई। हाँ, बट यू विल हैव टू एक्टिवेट दैट। अगर आपको ओके, कुछ पता क्वेश्चन नहीं। पूछना है, उसके बाद देयर विल बी अ नेक्स्ट स्टेप कि डू यू ओके, कंसेंट टू गिव ऑल ऑफ दिस डेटा ओ टू। तो हाँ, आई तो मैंने डोंट वो रिमेम्बर नहीं मैंने किया, से। दैट्स व्हाई ओके, नॉट डन। चलिए तो बहुत आगे ही बढ़ते सर्वेलेंस बढ़ रहा है, दिक्कत तो काफी है, एंड इट इज हैं। या हार्ड टू एस्केप, राइट। स्पीकिंग ऑफ इंडिया, इंडिया का एक रिसेंट रिपोर्ट आया था आरबीआई से, एंड इन्होंने अभिषेक मुरारका जो सीए हैं, ही हैज समराइज्ड दिस, एंड कुछ ट्वीट्स में इन्होंने अपना लिखा था। The main alarming thing is that household savings are declining. Now RBI की ही quote है कि total households have stood at 28.5%, down from an average of almost 40% during 2013 to 2022. Now इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं कि लो इनकम ग्रोथ, हाई टैक्स, इन्फ्लेशन, excess spending post COVID, and we can see this on a regular basis. आप like we keep talking about Indian context में inflation and the numbers going up, and जो भी आपका real estate market है वहाँ पे कैसे bubble, what we या think is a bubble वहाँ पे create हो रहा है. So people are not able to save, and a lot of people, because of finfluencers of late, and everyone is moving from their savings, जो savings का culture था वहाँ से निकाल करके everybody is putting into the equity market or want to experiment in different investment, because obviously, and वो क्यों होता है, you have become a forced investor or a trader because the savings and the current monetary structure is designed for you to take that risk. ऐसा नहीं है कि you can, पहले जैसे था like in the 80s राइट। and 70s where your money was stable and इतना fluctuate नहीं कर रहा था, it was not erratic. तो अभी to beat that 6 to 7% inflation on an average, where if you see आगे चल के अगर आप देखोगे कि 6 to 7 are the headline numbers, राइट। actual numbers जो है are double digits में, राइट। especially in the metro cities. So to beat this, a normal middle class working person वो करे कैसे? Like they will have to invest in your stock market, your कोई भी gold, whatever real estate assets जो भी, तो वहां से ही they'll have to get the returns and use it for their daily खर्चे. I'm giving the worst scenario. So that is what is happening in Indian context. अगर आप देखोगे in the last few months and years, and this is like directly from the RBI survey itself. So और आप and देखो is ना, हर 4-5 साल में प्राइस डबल हो ही रही है हर चीज़ की। exactly, तो 5 yeah, साल में प्राइस डबल मतलब कि 15% का इन्फ्लेशन रेट हुआ। yeah. RBI surveys reveal mixed economic signals. Growth is steady, inflation concerns arise. तो या फिलहाल तो ये है, एंड इसके चलते बिकॉज द मनी इज काइंड ऑफ फ्लॉड एंड ब्रोकन, वी कैन सी ऐसे सारी चीजें हो रही हैं इंडियन
context में. Right. We will do And one now episode on this, like Indian infrastructures are collapsing. crumbling. Like हाँ, India's are crumbling. yeah, कितने सारे यार, लाइक नीट एग्जाम से लेके गुजरात में भी इतने एग्जाम पेपर लीक, इंडिया में पेपर लीक, yeah. बड़ी बड़ी एग्जाम में कितना, मतलब कितना रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है पता है, लाइक बहुत हेविली रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, लाइक हम वी कांट इमेजिन, ऐसा लग रहा है मुझे, लग रहा है 100 में से 5 रुपया भी मुश्किल से नहीं पहुंच रहा नीचे Hmm. एक जनता तक, है ना, 95 रुपीज सारा उस चैनल में लोग खाए जा रहे हैं, और वो Right. पूरी ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी सिस्टम के कारण, और सबको लगता है कि डेमोक्रेसी सिस्टम सही है, या फिर ये लीडर कर देगा, वो लीडर कर देगा, कोई नहीं करेगा। और अभी भी, लाइक रिसेंटली आई टॉक टू लाइक 50-year-old मैन, Mm-hmm. ही इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट फर्म इन दुबई, एंड Okay. वो, लाइक ही अंडरस्टैंड फियाट, ही अंडरस्टैंड कि रिचर्ड निक्सन ने 1971 से गोल्ड हटाया, बट Mm-hmm. ही इज लाइक कि अगर हमें दुनिया को सर्वाइव करना है तो हमें गोल्ड स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा, Mm-hmm. लाइक लाइक और Mm-hmm. अब ठीक है, चलो मैं ठीक है, लाइक ठीक है, अब उसको बिटकॉइन नहीं पता, लाइक ही हैज हर्ड बिटकॉइन, ही हैज हर्ड Right. क्रिप्टो, बट वो नहीं पता, फिर भी चलो यहाँ तक भी ठीक है, फिर भी लाइक वो कोई एक लीडर के गुणगान गाए जा रहे हैं कि ये Mm-hmm. लीडर है ना, बस ये देखना अभी अगले 5 साल में ये कर देगा, वो कर देगा, सो अभी भी Mm-hmm. उनको वही है कि यार कोई एक बंदा आके करेगा। मैं बोला कि दैट चेंज कम्स फ्रॉम विद इन, मतलब बाहर से एनफोर्स नहीं किया जा सकता, कितना भी कर Correct. लो, Correct. नीचे से बॉटम अप करना पड़ेगा और लोगों को समझना पड़ेगा, और कोई एक आके कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बोला भगवान आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा, तुम्हें अंदर से कुछ चेंज लाना पड़ेगा। भगवान आएगा तो भी वो पहले ग्राउंड वर्क करेगा, राइट? Right. ग्राउंड वर्क Correct. होगा, लोगों के साथ होगा, तब कुछ होगा। Yeah. सो लोग नहीं समझ रहे, इंटेलेक्चुअल लोग नहीं समझ रहे, और ये क्या ही बात करना है, ये तो हम सारे बिटकॉइनर वाकिफ ही है कि वो थक जाते हैं बता समझा समझा के, It's okay, but हमारा काम है समझाना और एटलीस्ट राइट? दिखाना लोगों को क्या चल बट या रहा है. ही लाइक वो थोड़ा हेल्पफुल रहा है, लाइक ही प्रॉमिस मी टू लाइक वांट्स टू नो मोर अबाउट बिटकॉइन, Yeah. सो Yeah. I ठीक है, mean, बट अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑरेंज फिल्म. हाँ, राइट। So moving forward कि पल्लव जो है he shared a news, very shocking news rather yesterday, या कि असम में एक डिस्ट्रिक्ट है where a whole bank with all the money of depositors just disappeared without leaving any trace. बताओ, तो ऐसे कैसे हो सकता है? I am not sure. ब्रांच तो गायब हो गई होगी ना, मतलब 1 आध 2 ब्रांच होगी, 10-15 ब्रांच होगी और सब निकल गए होंगे हाँ, अचानक ही। वो हेरा फेरी का सीन जो नहीं है हाँ, अनुराधा वाला, वो याद दिलाता है. बताओ। तो लोगों की सेविंग गई, डिपॉजिट की, और सरकार क्या कर रही है? ये लो, ये जनता को बोलो कि ये तुम्हारी सरकार है, देखो एक चीज से प्रोटेक्ट नहीं करती, और फिर भी जनता को जागने की जरूरत है ना? आई थिंक कौन, किसने कहा था, थॉमस जेफरसन या फिर जॉन एडम्स, लाइक वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ यूएसए, कि जनता को वही लीडर्स मिलेंगे जो डिजर्व करते हैं, है Yeah. ना? तो हो रहा है, यही हो रहा है, जोकर सबको ऐसे जोकर ही मिल रहे हैं, और इस चलो. ये प्रॉब्लम हुआ फिर भी लोग अभी अभी जैसे नीट का पेपर हुआ, लाइक आई वाज इनटू टीचिंग इंडस्ट्री, नीट का जो पेपर का हुआ है, तो जा जाके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एनटीए के चीफ को हटाओ, वो हटाओ, मतलब अभी भी वो लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं, Yeah. लाइक दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, वी डोंट नो व्हाट द सॉल्यूशन इज। और अभी मतलब अब ऐसा नहीं कि नीट की प्रॉब्लम हुई तो अभी कुछ करके सॉल्व हो जाएगा, नहीं, वो रूट प्रॉब्लम है, मतलब मनी से ही सारा मतलब कुछ किया भी नहीं जा सकता, बट रूट प्रॉब्लम इज मनी, और वो देर विल बी लाइक टाइम लगेगा, सीधी बात यही है। आज हमारा 12वां 13वां एपिसोड है, शायद ये 1300वां एपिसोड भी पहुंच जाएगा, तब शायद हमें कुछ अच्छा दिखेगा, राइट? Yeah. चलिए. टाइम लगेगा। तो मूविंग अहेड, वेयर वी आर हेडेड इंटरनेशनली, इंडिया में, ग्लोबली, एवरीवेयर, इज, देखिए, अर्जेंटीना में ऐसा एक लिमिट है कि $200 से ज़्यादा यू कैन नॉट बाई और यूज यूएसडी इन योर अकाउंट, डॉलर्स इन योर अकाउंट, एंड नॉट एवरीवन कैन एक्सेस इट. That is why people use something called Kivas, which is basically a P2P in real life and is the easiest ways to get dollars and standing stable sats. You send USDT and a guy in motorcycle will come to your apartment with dollars in cash like a drug dealer.
तो ऐसे ही अर्जेंटीना में हो रहा है, वेयर ऑब्वियसली वहाँ पे सही इन्फ्लेशन है है। यार ये। या इस टाइप की तो सर्विस अपन इंडिया में भी चलेगी कोई करे तो, है ना? so fiat across the world is broken, and most people due to inflation have issues with their currencies. तो स्टेबल, अगेन हमने ये आई थिंक लास्ट एपिसोड में कवर किया था कि प्लेसेस लाइक अफ्रीका एंड नाइजीरिया इन पर्टिकुलर, वहाँ पे स्टेबल कॉइन्स का ज़्यादा यूज़ है, बिकॉज दे यूज इट एज अच्छा ठीक है, कंपेयर टू ऑल आर करेंसीज डॉलर इज अ लिटिल स्टेबलर, तो हम लोग स्टेबल कॉइन यूज करेंगे टू ट्रांजैक्ट इन डॉलर, एंड फॉर स्टोर ऑफ वेल्थ विल यूज बिटकॉइन। तो हमारी सेविंग्स हुँ, वगैरह बिटकॉइन में रहेंगे, एंड हुँ, हम हुँ, यूएसडी यूज करेंगे फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटी। हुँ, हुँ। सो वी कैन सी दिस हैपन अक्रॉस, आई मीन अर्जेंटीना में ऑलरेडी हो रहा है, नाइजीरिया में हो रहा है, इंडिया वी में कैन भी हो सी। रहा है, लाइक इंडिया या यूएसडीटी, इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज मार्केट इन ऑफ यूएसडीटी। लाइक अच्छा। आई नो मेनी पीपल, लाइक उनको डेली मोर देन 50,000 यूएसडीटी ट्रेड करते हैं। लाइक आई नो मोर देन 5 टू 7 पीपल बाप रे। जो 50,000, लाइक वो जो बाई सेल और मैंने आई थिंक एक बार बताया था, लाइक फेसबुक की जो इंडिया में एड्स चलती है ना, लाइक उनको फेसबुक में मार्केटिंग कैंपेन करने के लिए दे बाई सम ओल्डर अकाउंट्स हम्म, फ्रॉम मिडल ईस्ट कंट्रीज, और वहाँ से फिर उसमें लाइक एंड वो यूएसडीटी में ट्रेड होता है। लाइक कोई ओके। अगर किसी के पास 5 इयर्स ओल्ड मिडल ईस्ट का कोई अकाउंट है फेसबुक का, तो वो देंगे एक्सेस, और हम्म, वी विल पे हिम ऑन इन यूएसडीटी। तो ये हो रहा है। हम्म, ये नहीं और पता वो मनी लोड करके देंगे, लाइक इफ यू वहाँ से मनी लोड करके देंगे। था। ओके। इंडियन अकाउंट्स कभी बैन हो जाता है, ऐसा हो रहा है। सो और अनदर थिंग इज कि लाइक देर आर सम रूमर्स हम्म, कि गुजरात में, सूरत में जो डायमंड मार्केट्स हैं, तो डायमंड मार्केट्स का जो हेरा फेरी चलता है, लाइक ये सब प्योर स्पेकुलेशन है, लाइक डोंट होल्ड मी फॉर दैट व्यूअर्स। बट ऐसा है कि डायमंड मार्केट्स में जो डायमंड्स, लाइक वो जो सारा ट्रेड चलता है वो डायमंड्स, कैश और क्रिप्टो में चलता है। तो सूरत इज अच्छा। द बिग हब ऑफ इंडिया में भी। हम्म, और आप कोई भी आप, मतलब आप यूएसडीटी के डीलर्स के आप ट्रेस बैक करोगे तो उसका रूट सूरत में निकलेगा। सारे यूएसडीटी मोस्टली सूरत होकर आ रहे हैं, और सूरत में जो आ रहा है वो उसका रूट दुबई निकलेगा। हम्म, दुबई दुबई में ऐसा कहीं भी जगह है कि आप कैश लेके जाओ, एक बैग भर के वो आपको यूएसडीटी दे देंगे आपके अकाउंट में। और आप बोलोगे तो आप कोई कोई सिटी गुजरात में या इंडिया में कोई सिटीज में कैश जमा करो, वो आपको दुबई के रेट में यूएसडी दे देंगे। ऐसा भी हो रहा है। हम्म, बट फॉर दैट यू नीड नेटवर्क ऑन कनेक्शंस, तो यू विल गेट 86 टू 87 पे मिलता है अभी, 87 पे रेट है, एंड यू कैन सेल इट एट 90 91, सीधा आर्बिट्राज। हम्म, सो ये सब मार्केट, अब ये कि सरकार ये सब बैन करती है, टैक्स लगाती है, तो फिर मार्केट अपने कुछ सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, राइट? या बट वी इंडियंस आर पेइंग ना, वी आर बाइंग बिटकॉइन 10% कॉस्टलियर देन अदर्स। सो कितना बड़ा नुकसान है। और बीच में सारे रेंट सीकर्स पैसा खा रहे हैं, या इंक्लूडिंग मे बी गवर्नमेंट और सम पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट। जुलाई के थर्ड वीक में बजट अनाउंस किया जाएगा, होपफुली इस बार कुछ रहे। अच्छा अच्छा, इंडिया। न्यू न्यू सेशन क्या बोलते हैं, न्यू गवर्नमेंट का बजट ना? या राइट। तो चलो प्रॉपर वील डिटेल कवर। जुलाई में होना था। 26th है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट थर्ड वीक में। Yeah, we'll bring someone, like one of my friend will like does budget analysis, so like हम्म, let's bring him, या discuss करते हैं, like one episode dedicated to the budget. यस। हम्म Last segment of today's show, हम्म we go into the developments जो भी हो रहे हैं in specifically in Bitcoin. Now, Bitcoin Core announces a new security disclosure policy. So अब तक जो भी होता था कि people used to find bugs हम्म and find loopholes, and they used to हम्म directly work on it और announce कर देते थे on Twitter, Discord, IRC वगैरह में, and हम्म उस पे काम चालू स्टार्ट कर देते थे। सो नाउ व्हाट बिटकॉइन कोर is doing is making a specific place where you have low severity, medium and high severity and critical severity bugs,
which impact Bitcoin's ecosystem and health as a whole. हम्म तो अभी फिलहाल तो नहीं है any threat, but there have been bugs in the past. हम्म Where people can, you know, एक बार ये आया था कि ये 2013 या 20, हाँ अर्ली 2010 2013 के बीच की बात है, वेयर इसमें लिखा होगा। हम्म आई इसमें से डोंट, है क्या कोई सीवी 2018 2013 क्या था? तो उसमें वो इन्फ्लेशन बग था बिटकॉइन का, वेयर राइट, हाँ, बिटकॉइन का 21 मिलियन कैप नहीं, इट वेंट ऑन टू बिलियंस. बिलियन, हाँ हाँ तो हाँ, so that was one of the first recorded critical बहुत bugs. इनिशियली राइट, विद इन 2 years ऑफ दिस बिटकॉइन, Yeah. सतोशी तो वो फिक्स सतोशी हो गया फिक्स था. दैट बग। या वो इंस्टेंटली फिक्स हो गया था. एंड उसके बाद में देयर हैव बीन स्मॉल माइनर bugs which have popped up now and then. And obviously developers, maintainers का काम यही है कि they be on the lookout for all of this and see if the protocol is functioning well. हम्म तो इसके चलते Bitcoin core team has made this specific हम्म section जहाँ पे कोई भी they can, you know, post their security issues. Obviously it should be relevant. ऐसे भी नहीं कि कोई भी मुझे पसंद नहीं आया तो जा करके वहाँ पे डाल दिया security grade. The next thing, I'm not sure if how many of you आपने play खेला है इसमें Bling. Bling वहाँ पे if you play, it's a mobile application. वहाँ पे you have, you know, जैसे Candy Crush वाले games होते हैं, you have your Tetris type games. राइट, So you play मजा those. आएगा यार। हाँ, when you clear a certain levels, पहले तो आपको मिलता था, it was on Lightning, but Coinbase was the custodian. तो आपको Coinbase ओके, के अकाउंट में मिलता था. But now, ओके, recently, the founder of Bling has chosen Bitcoin Lightning directly in partnership with गुड, Voltage. तो आपको एवरी स्टेज पे जो भी क्लियर करते हो, आप अपने सैट्स जितने भी मिलते हैं आपको, दे आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू योर ओन वॉलेट, आपका सेल्फ मजा कस्टडी आएगा। वॉलेट इंस्टेंटली. हम्म ऐसे नहीं है कि आपको कॉइनबेस का यू नो हम्म अकाउंट बनाना है, वहाँ पे डालना है वगैरह. So for those who have not tried, Bling is a good gaming platform for your, you know, राइट, Candy Crush types, छोटे मोटे games types. राइट, आई विल फॉरवर्ड इट टू माय लाइक यंगर नेफ्यूज एंड यंगर हाँ, कजिन्स, मजा या आएगा अगर उनको। खेल ही रहे हो then earn a few sats हम्म for it. हाँ, वो लोग वैसे कोई कोई लाइक वन ऑफ माय नीस, वो Yeah, हर महीने 2000 के सेट्स लाइटनिंग पे इकट्ठा करता है, nice. तो मजा आएगा उनको। Yeah. हम्म Phoenix Wallet का मेजर अपग्रेड हुआ है in last 2 days. I think ये कब की बात है हम्म ये? हाँ, July रिसेंटली 3rd. हुआ है। हाँ. हम्म So Bolt 12 is another uh, parameter of लाइटनिंग Lightning. इम्प्रूवमेंट कह सकते हो, हाँ। Yeah, Lightning हम्म को improve कर रहे हैं, where हम्म a person जैसे they, you don't have to send an invoice. Like so Lightning का concept ये है कि if Bhavik and I are the parties involved and हम्म भाविक को मुझे कुछ पैसे देने हैं, so हम्म Bhavik needs to send me an invoice for हम्म that amount. Then only I can pay him on Lightning. राइट, With this, तो ये अब तक था. With Bolt हम्म and Phoenix का integration, what has happened now is there is a reusable non-expiring payment request. So अगर राइट, हमारे बीच में एक बार connection establish हो गया, then either Bhavik or me can send each other on Lightning without any hassles. ऐसे नहीं है कि you know हमें even online when रहना. you're offline, right? Even whenever you, even you are offline, or That is getting hmm, fixed. कुछ cases में as of now when your offline payments नहीं जाते, you'll have to be online. hmm. But But that Phoenix is a minor Phoenix issue. does that, right? Phoenix Yeah. में होता है। फिनिक्स में भी है, बट अभी वो इनिशियल यू नो थोड़े एडजस्टमेंट एरर्स है, इसलिए कुछ केसेस में अभी नहीं हो ओके, रहा है. तो whoever is trying this, do not get alarmed के नहीं हो रहा है and stuff. If you both are online, transactions will go through. So contact list is another feature which has been added, and the messaging. This is like for the Indians and the Indian users जो भी use करना चाहें, this is exactly like UPI, all the features rather, but on a Bitcoin standard.
Yeah, that's the best analogy I can think of. हम्म, क्योंकि इसमें राइट भी वही होता है, अगर आप दूसरी पार्टी के साथ एस्टैब्लिश करते हो फर्स्ट टाइम कनेक्शन, उसके बाद में यू कैन सेंड देम मैसेजेस, यू कैन सेंड देम पेमेंट्स थ्रू यूपीआई इटसेल्फ. सो दिस इज समथिंग सिमिलर डन ऑन बिटकॉइन एंड लाइटनिंग. राइट स्पीकिंग ऑफ दैट, लेंडसैट जो आप डीएलसी की ओ बात कर रहे थे अर्लियर इन द एपिसोड, this is a new concept which is being formulated and आई लव द non ऑथर नेम Lendesat. हाँ अच्छा, लेंडा सोसी Lendes सातोमोटो Lendesosh Satomoto सातोमोटो Satomoto. like it's a pseudonym right Yeah, yeah, of course. हम्म तो इसमें भी आर्क करके एक solution है, that is another हम्म solution running parallel to Lightning. तो हम्म उसके बारे में we had majorly announced कि कैसे चलता है in the previous episodes. हम्म Here it's a non-custodial instant loan. So it facilitates peer-to-peer lending and on Bitcoin obviously and Bitcoin and Lite. हम्म So ऐसे there is a whole आई लव इट ecosystem which is being formed. So LN markets again is something like a stock market which is entirely on Lightning. तो आप जो दूसरी currencies में trade करते हो on a regular stock market, the same thing you can expect on LN markets, but that is specifically on Bitcoin itself. You don't have any other currencies, don't have other commodities वगैरह. Not yet, not as of now. आगे चल के कैसे developments होते हैं, we are not entirely sure of that. But this is something to watch out and look out for, because this is राइट agar El Salvador is making Bitcoin banks on a global level, I mean on a nation level, this is something which is being done for a individual or a retail user kept in mind. And it राइट might, I'm guessing it will be open source. Abhi, there is nothing much about it. हाँ It's ओपन just सोर्स that, होगा मोस्टली क्योंकि वही सर्वाइव कर पाएगा है yeah, ना yeah yeah. like we don't have the full link of that paper I'm ये वाला trying नहीं, to अभी ये find बन the रहा है. He's just mentioned this much and he's फर्स्ट let. पेज है ना Yeah. राइट So, yeah, that has happened. बट डिस्ट्रिक्ट And लॉ कॉन्ट्रैक्ट इट्स गुड राइट उसमें उसके बारे में कुछ पता है तो बताना अभी डीएलसी फिलहाल तो even I'm not entirely sure of it. उसके बारे में पढ़ना होगा. राइट And otherwise I'll राइट be giving off information. ठीक है Nostr को लेके yesterday BitSpace, which is based out of Bangalore, and it's a FOSS इंडिया center. बेंगलोर Yeah. तो यहाँ पे Nostr के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था. It was quite a good session. NIPs के बारे राइट में, yeah, and then Nostr के साथ क्या क्या कर सकते हैं, and बसंता ने भी ओवरव्यू दिया था Nostr के या इकोसिस्टम बसंत का, इज देयर राइट everything. सो इंडिया में फाइनली अपना एक बहुत बढ़िया सा सेशन स्टार्ट हो गया है फिजिकल स्पेस और इट्स अ Yeah. ब्यूटीफुल स्पेस और लोग सीख रहे So any developers in Bangalore, it's open to all, by the way. But if you are a developer and if you're looking to contribute on Bitcoin and Lightning, this is the place to be. Please don't fall for Web3 crypto nonsense. यहाँ पे राइट आपको सिर्फ Bitcoin चीजें ही मिलेंगी, and you can be assured कि you'll be guided the right way. So yeah, एंड Nostr is amazing yes. Nostr is really amazing Nostr.stats.ban I am watching some Nostr statistics if अगर कुछ अच्छा है तो बताता हूँ मैं So राइट यही सारे developments थी. That's what I wanted to bring to light कि apart from the price action, ये सब कुछ भी चल रहा है Bitcoin में. People do not have much knowledge about. तो लोग बोल रहे हैं कि क्या है, नहीं ठीक है, you know, price पे सब कुछ नहीं होता. There are other things as well. But yeah, the coming राइट few weeks will get to know more about how things perform on, राइट you know, the levels. आप कुछ दिखा रहे थे? Yeah, like I was checking Nostr stats कि अगर कुछ हुआ तो so like last 6 months में almost how much Bitcoin has been zapped yeah 1.5 Bitcoin has been zapped in the last 6 months so it is relatively same but Nostr is growing so trusted users are 158,000 trusted Right. users
it's relatively same, like it's growing slowly, but कुछ अगर ऐसी कुछ न्यूज़ आती है सोशल मीडिया में, ट्विटर वगैरह कुछ हैक हुआ, या सॉरी ट्विटर में डाटा प्रॉब्लम, कुछ भी, इलोन मस्क कुछ पॉलिसी चेंज करेगा तब नोस्ट्रो में यूजर्स ज़्यादा आते हैं। हम्म। और मुझे ऐसे लोग ज़्यादा दिख रहे हैं धीरे धीरे जो ट्विटर छोड़ छोड़ के नोस्ट्रो में जा रहे हैं। कोई ना कोई तो ऐसे दिख ही जाता है पोस्ट में, जो ट्विटर या छोड़ छोड़ के नोस्ट्रो में जा रहे हैं। वही ना, दैट्स तो द थिंग, वहां पे जाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लोग तो स्विच कर लेते हैं, उसके बाद में वहां पे हम्म, मेंटेन करना ना, दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू राइट। पिक अप। हाँ हाँ, लाइक अभी अभी हार्ड रहेगा ना, बिकॉज वो भी कंटेंट नहीं है वहाँ पे, कोई नेटवर्क इफेक्ट नहीं है, और एंगेजमेंट कोई इतना, ट्विटर और ये सब तो पूरा ऐसा बन चुका है ना कि वहाँ पे तो एंगेजमेंट के लिए कैसी पोस्ट मिलेगी हमें। सो अभी ये पूरा नॉस्टॉप भी हो जाएगा 5 साल में, देन इट विल बी इजी। नाउ इट इज टाइम टू बिल्ड लाइक सम रेप्यूटेड अकाउंट्स। या हम्म बट और क्या बोल रहा था मैं? हाँ, देयर हैव बीन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, they talk हम्म about freedom a lot, they talk about privacy a lot, they talk हम्म about, हम्म data security. So हम्म in one of the posts, HRF recently, Human Rights Foundation, they've moved on to Nostr and उन्होंने अब वहाँ का प्रोफाइल बनाया है. So I personally tagged Internet Freedom Foundation and उनको बोला कि why don't you join हम्म Nostr? तो वहाँ हम्म पे I'm sure people are looking at all of those things, but they're हम्म not देयर आर सो मच नॉइज ना, सो दे very डोंट skeptical of that. ट्रस्ट और दे डोंट नो। Yeah. बिटकॉइन में भी उनको सब वो स्केप्टिकल हो रहे हैं, उनको पता नहीं लग रहा है कि बिटकॉइन भी फ्रॉड ही लग रहा है लोगों को। हाँ, उसके बारे हाँ में बात करो तो लोगों को लगता है कि नहीं, पहले बात तो हाँ स्कैम। हाँ। क्योंकि इतना ट्रॉमेटाइज हो गया ना वो कि हम्म everyone around them have been scamming. हाँ। और वो बोल उसको रहे कि लेके लीगल नहीं है, तो अब अब वो दैट ऐसे इज कौन इग्नोरेंस, होता उसका है बोलने वाला कि लीगल नहीं है ना? कौन होता है बोलने वाला लीगल? स्टेट बोलेगा क्या लीगल? मतलब जब जनता यूज कर रही है, जनता को फायदा हो रहा है, स्टेट कौन होता है बोलने वाला लीगल? पर वही है कि जनता को लग रहा है स्टेट जो बोलेगी वो सही है। भूल चुकी है कि स्टेट है जनता के कारण, जनता है तो सरकार है। पर भूल चुके, अब लग रहा है कि सरकार है तो जनता है। लोग उल्टा, लोग एकदम वो हो चुके हैं ना। या सो टाइम लगेगा थोड़ा चेंज होने में। देयर इज नॉट इनफ पेन। राइट। हम्म, ठीक है। चलिए, इस हफ्ते का वी कंक्लूड राइट द सेशन. अगले हफ्ते विल गेट सम मोर एक्साइटिंग न्यूज़ एंड इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होपफुली. राइट। एंड डू लेट अस नो आपको कुछ स्पेसिफिक देखना है, जस्ट इफ यू गिव वांट मी अस टू कवर फ्यू टॉपिक्स एक्सेट्रा. हाँ. मिनट। Yep. So that's pretty much it. We'll see you guys next week. And till राइट। then, signing off. भाविक आपको कुछ नेक्स्ट में बोलना है? मिलते हैं, या नेक्स्ट में Yes. मिलते हैं। इट वाज एपिसोड 13, राइट? Yes. हम्म। So we are making slow यस। and steady progress. And we thank you राइट। for whoever's watching. And do let us know your feedback and या अगले में मिलते हैं। topics that you'd like to cover. Yeah. हम्म चलिए. हम्म, Bye. ठीक है, बाय बाय। थैंक यू।